Hello everyone and welcome to the next chapter. Today we are going to learn the basic of chapter number 14, that is statistics. It is a very scoring chapter, that is why I have taken this chapter now. Let's move ahead. First thing is you have to find the mean. First exercise is based on mean. Now, what is the basic meaning of mean? First I want you to understand. Mean basically means average value. तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? सपोज करिए एक टेस्ट में आपके नंबर आए हैं सपोज 16 एंड इन अनदर टेस्ट यू हैव स्कोर्ड 18 आउट ऑफ 20. So average means 16 plus 18 upon, right, 20 plus 20. So this is how you calculate average, right? So average value of a given data is said to be the mean. So first logic should be very clear ki what is the basic meaning of mean. Now when you want to find mean, since in your syllabus it is only mean of a continuous data. So basically what are data? When we talk about information, random information given, it is known as data. So basically data is of two type: raw data, when only numbers are given to us, and there is a data also known as discrete data and group data. So these are the three types of data. Raw data means, suppose kariye we are talking about marks. So suppose we are talking about your class has 40 students. So marks of 40 students which are randomly given कि 20 on 20 आए हैं, 18 आए हैं, अगेन किसी और के भी 18 आए हैं, फिर 20 आए हैं, फिर 19 आए हैं, किसी के 14 आए हैं. दैट इज रॉ डेटा. डिस्क्रीट डेटा मीन्स कि जो मार्क्स हैं वो कैटेगराइज्ड है, यानी कि लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो 14 आए हैं. 14 कितने लोगों के आए हैं? एक के. उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1. सिमिलरली 19 कितने के आए हैं? एक के. सिमिलरली आगे जाके आप बढ़ते जाइए, 20 कितने के आए हैं? सपोज 4. सो दिस इज हाउ यू कैटेगराइज डिस्क्रीट डेटा, राइट? जिसमें डेटा गिवन हो, मतलब मार्क्स क्या है वो दिया हुआ है, जिसे हम XI भी कहते हैं, राइट? एंड उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, राइट? दैट इज दिस कि जो 14 मार्क्स है वो कितने बच्चों के आए हैं, 19 जो है वो कितने बच्चों के आए, 20 मार्क्स जो है वो कितने बच्चों के आए. और तीसरा टाइप ऑफ डेटा होता है ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा मीन जिसमें क्लास इंटरवल होती हैं और फ्रीक्वेंसी होती है. नाउ क्लास इंटरवल मीन सपोज मैंने 0 to 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, सपोज एक के भी नहीं आए. फिर 5 to 10 कितने के आए, सपोज 2 के आए, एंड सो ऑन, जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं मार्क्स की. तो उसे कहा जाता है ग्रुप डेटा. नाउ इसमें यू जस्ट हैव टू नोट 0 to 5 मीन्स जो 5 है वो इसमें नहीं, इसमें इंक्लूड करना है. सिमिलरली अगर अगला इंटरवल 10 to 15 है तो जो 10 है वो इसमें नहीं, वो इसमें इंक्लूड होगा. दैट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा. नाउ इन योर NCERT or in your CBSE syllabus, we have to talk about methods to find mean of group data. Now when you have a look at NCERT, there are three methods. One is direct method, the other one is assume mean method, and the third method is not in your syllabus, so I will not touch upon that method. Okay, that is a shortcut method, so that we will not be doing. So let's talk about the first method, which is also known as direct method. So first step is I want you to find class mark. Okay, class mark is represented by XI, and class mark are upper limit plus lower limit upon 2. This is how class mark is calculated for a given class. The second thing which I want you to find is another column which is XI FI. So basically हमें दो नए कॉलम बनाने हैं. क्लास इंटरवल हमें डेटा में ऑलरेडी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी हमें डेटा में ऑलरेडी गिवन होगी. तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ हम इसका XI फाइंड करेंगे. और एक और चीज़ जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट नोट करनी है
कि आपकी जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो हमें उसे पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा बिफोर फाइंडिंग द क्लास मार्क. सो दिस इज द first thing which I want you to note. After after making three columns, after making xi column as well as fi xi का क्या मतलब हुआ, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक थर्ड कॉलम आ जाएगा. अब आप थर्ड जो लास्ट वाला कॉलम आया है fi xi उसका सम फाइंड करोगे. दिस इज द सिंबल ऑफ सम या summation also. So you will find out the sum of this, you will find out the sum of frequencies also, and you will divide. That's the formula of mean. Summation of fi xi upon summation fi. So basically ये formula आया कहाँ से, वही वही वाली बात हो गई कि जो ये नंबर है वो इतनी बार आ रहा है, तो टोटल नंबर कितनी बार आएगा कैसे पता चलेगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पूरा सम अपॉन टोटल कितने नंबर्स हैं, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी का जो है आपको मीन निकालना है वो अपॉन सम हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज द डायरेक्ट मेथड. नाउ फर्स्ट let's solve the question using direct method and then we will move on to the second method. So we are doing exercise 14.1. First question. Now here, look here children, already class interval is given to you, right? I want you to just check कि class interval continuous है कि नहीं. तो वो आपको दिख रही है 0 to 2, फिर 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14. ये कंटिन्यूस इंटरवल है, राइट? कंटिन्यूस यहीं से देख के पता चल जाएगा. जो पहली क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाली क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी. दैट इज कंटिन्यूटी. ओके, और गैप भी आप देख सकते हो कि इक्वल है, तो आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ इक्वल गैप ही है. क्वेश्चंस विद प्रॉपर कंटिन्यूस इंटरवल विद प्रॉपर गैप. सो 1 2 1 5 6 2 and 3 frequency is given to you. So I told you first column जो आपको बनाना है that is xi. xi क्या होता है, अगेन मैंने आपको पिछला स्लाइड में फॉर्मूले से समझाया. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 0 + 2 is 2, 2 upon 2 is 1. Similarly 2 + 4 that is 6 children. तो 6/2 is 3. अब आप चेक करो क्योंकि इनके ये प्रॉपर इनके सब में जो क्लास साइज है वो सेम है, यानी कि इनका गैप सेम है. तो आप चेक करना, आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. इन दोनों में जो गैप होगा, इन दोनों में कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो अगले में भी 2 का गैप होगा. तो नेक्स्ट इंटरवल नेक्स्ट क्लास साइज क्या आएगा, 3 + 2 दैट इज 5, फिर 5 + 2 दैट इज 7, फिर 7 + 2 राइट 9, फिर 9 + 2 11, फिर 11 + 2 दैट इज 13. ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट इज fi xi. सो 1 into 1 यानी कि fi into xi मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों कॉलम्स को आपको मल्टीप्लाई करना है. तो 1 into 1 is 1, 2 3s are 6, 1 5s are 5, 7 5s are 35, 9 6s are 54, right? 2 11s are 22 and 3 13s are 39, right children? Now डायरेक्ट फॉर्मूला, मीन का डायरेक्ट का फॉर्मूला समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. तो आपको टोटल फाइंड कर लेना है इस कॉलम का, राइट, और इस कॉलम का. तो फाइंड करते हैं टोटल. सो 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 हो गया. फिर 5 15 हो गया, राइट. 15 + 3 18 हो गया, 19 20. सो दिस इज 20. सिमिलरली ऐड करते हैं 6 + 4 10, 5 + 5 10 अगेन, सो 20, 29 + 1 30, this is 32. So 2 and 3 carry over. So
5 plus 5 10, 10 plus 3 13, 13 plus 3 16. So it is 162 upon 20. So divide कर देते हैं 2 से, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 10. अब आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 10 नीचे जीरोस आ गए तो पॉइंट लगा लो, तो 8.1. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है, मीन जो है वो 8.1 आया है, तो 8.1 क्या? सो 8.1 नंबर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जो मीन है वो क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, और क्लास इंटरवल यहाँ किससे डिनोटेड है? नंबर ऑफ प्लांट से. तो बेसिकली मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना हुआ? 8.1 प्लांट्स पर हाउस. दिस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज गिवन. मतलब यूनिट कैसे पता चलेगा आपको? जैसे इस केस में जो यूनिट है वो क्या होगा? जो भी आपका मीन आएगा वो डेली वेजेस आएगा, यानी कि रुपीज में आंसर आएगा. इसमें भी रुपीज में आएगा. वो एवरेज पॉकेट, अच्छा इसमें तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन अगर हमें मीन निकालना होता तो वो एवरेज पॉकेट मनी आता है, यानी कि रुपीज में. तो ये था पहला कॉन्सेप्ट मीन का, डायरेक्ट मेथड. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मेथड, assumed mean method. ये बच्चों को आई डोंट नो व्हाई डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस मेथड में एक मार्क्स ज्यादा मिलते हैं. इट्स अ मोर स्कोरिंग मेथड एंड इट टेक्स लेस टाइम, and it is useful when you have to deal with big numbers. मतलब छोटे नंबर्स नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन इतनी आसान नहीं है, राइट? नाउ हाउ टू गो अबाउट दिस मेथड, लेट्स लर्न. पहला स्टेप सेम, क्लास मार्क फाइंड करना, जो कि बता ही दिया था लास्ट वाले मेथड में भी. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ अ गिवन क्लास इंटरवल अपॉन 2. अगेन दिस नोट इज स्टैंडर्ड, द क्लास इंटरवल हैज टू बी कंटिन्यूस. अगर वो नहीं है तो आपको कंटिन्यूस करनी पड़ेगी. आप क्लास इंटरवल कैसे कंटिन्यूस करोगे वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन में समझाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, नथिंग विल बी मिस्ड. नाउ एज द नेम सजेस्ट, अज्यूम्ड मीन, मतलब अब मैं क्या चाह रही हूं कि आप कोई वैल्यू, सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई को ए मान लो, यानी कि उसे अज्यूम कर लो कि आपका जो मीन है वो यही वैल्यू आएगी, एक्स आई की जो सेंटर मोस्ट वैल्यू है. ओके इसमें भी कई बच्चों को डाउट होता है. सपोज करिए जो एक्स आई का जो मैंने कॉलम बनाया है उसमें मेरे पास आया 2 4 6 8. नाउ इसमें से आप किसको अज्यूम मानोगे? तो आप ए को भी अज्यूम ले सकते हो, और आप सॉरी 4 को भी अज्यूम ले सकते हो, और यू कैन टेक 6 ऑल्सो एज अज्यूम मीन. अगर दो सेंटर मोस्ट वैल्यू है, यानी कि इफ 1 2 3 4 4, if even number of xi terms are there, you can take any of the center values as mean. लेकिन अगर सपोज करो इसमें अगला वाला 10 है, तो अंडरस्टूड है जो अज्यूम मीन है वो सेंटर मोस्ट वैल्यू ही लेनी है, यानी कि अज्यूम मीन इस केस में 6 ही लिया जाएगा. तो अगर ऑड नंबर्स होंगे तो इक्वल नंबर ऊपर छोड़ दो, इक्वल नंबर नीचे छोड़ दो, और सेंटर मोस्ट वैल्यू को आप मीन ले लो. लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप दोनों में से किसी भी सेंटर मोस्ट वैल्यू को मीन ले सकते हो. सो फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज टू अज्यूम द मीन. ए की एक्स आई की वैल्यू, ए को कोई भी सेंटर मोस्ट एक्स आई वैल्यू मान लो. अब इसमें एक कॉलम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इसमें डी आई बढ़ जाता है. डी आई मीन्स जो एक्स आई है वो मीन से कितना डेविएटेड है, डेविएशन कैलकुलेट करना है बेसिकली हमें. तो एक्स आई माइनस ए हम निकालेंगे, राइट? इसका भी आई विल टेल यू अ शॉर्टकट. हाउ विल यू कम टू नो कि आपका डी आई करेक्ट है कि नहीं, ये भी मैं आपको समझा दूंगी. और लास्ट, फॉर्मूला ऑफ मीन नाउ चेंजेस. अज्यूम मीन जो आपने किया है, क्योंकि वो तो आपने मान ही लिया था मीन ये है, और उसमें कितना डेविएशन आया है. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डेविएशन, summation of FIDI upon summation FI, right? After calculating FIDI term. Let's continue. Suppose करिए सेम क्वेश्चन है, सेम एक्सरसाइज है,
and we have to do, I'm sorry, suppose same exercise है and we have to do question number 2. Now have a look children, class interval में जो intervals हैं वो कितनी बड़ी हैं, यानी कि जो numbers हैं they are huge numbers, right? 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600. First let's check कि क्या इनमें गैप इक्वल है कि नहीं और इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं. Yes, interval is continuous. As you can see, the gaps are all equal, right children? So we can, frequency is given 12, 14, 8, 6 and 10. Let's just find out xi first. The first step remains the same, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो चाहे वो अज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं. तो xi क्या है, दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी कि 510. दिस विल बी 530. नाउ चेक द गैप, 20 का गैप है तो आगे खुद ही फाइंड कर लो. 550, आगे 570, आगे 590, राइट? अब चेक करिए, अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करने की कोशिश करूं बेटा तो क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन रिड्यूस करने में अब मैं इसमें अज्यूम मीन मेथड यूज करूंगी और उसमें अगेन वही इक्वल 1 2 3 4 5 टर्म्स है. 5 टर्म मतलब दो उधर की छोड़ दो, दो इधर की छोड़ दो और सेंटर मोस्ट वैल्यू को तुम ए ले लो, राइट? एंड नेक्स्ट कॉलम है तुम्हें फाइंड करना है डी आई विच इज एक्स आई माइनस ए. अब सबसे पहले ए 550 माइनस 550, तो मतलब इस वाले का आंसर जिसको आपने मीन अज्यूम किया है उसका डी आई डेविएशन हमेशा जीरो आएगा. डेविएशन मीन्स एक्स आई ए से कितना दूर है, तो यहाँ पे तो एक्स आई और ए सेम है तो इसका मतलब डेविएशन जीरो आएगा. इसके ऊपर वाले सारे नेगेटिव आएंगे, इसके नीचे वाले सारे पॉजिटिव आएंगे. 510 माइनस 550 मतलब -40. दिस इज -20. अगेन आपको गैप दिख गया, 20 का गैप है, ये 20 आएगा, अगला वाला 40 आएगा. लास्ट कॉलम एफ आई डी आई, that is your last column which you have to find out. FIDI. So this into this. Now see the calculation has reduced. आपको सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ. So 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4. So -480. 20 को मल्टीप्लाई करना है 14 से. So 0 तो लग ही जाएगा. 2 को 4 2 ज़ा 8. This is 2. So this is 0. Now 20 into 6. 6 2 ज़ा 12 and 0 लग गया. This is 4 and 00, right? Now again a method where you will not make mistake. I want कि negative को आप अलग add करो. तो 0 8 8 plus 8 16, 1 carry over, 4 5 6 and 7 यानी कि ये आ गया -760. प्लस को अलग करो, 0 2 4 प्लस 1 5. अब आप इन दोनों को अलग से सब्ट्रैक्शन कर दो फाइनल आंसर निकालने के लिए, ताकि आप कभी भी गलती ना करो. तो 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, और साइन किसका आएगा, बढ़ेगा. तो 760 और 520 में 760 बढ़ा है, तो यानी कि इसका समेशन आ गया -240. ये गलती बेटा नहीं करनी है. प्लीज इंश्योर कि नेगेटिव अलग से एडिशन हो, पॉजिटिव अलग से एडिशन हो. आफ्टर दैट यू ऐड टू गेट द फाइनल आंसर. अच्छा, इसका सम अगेन आप कर सकते हो. 6 + 4 10, 8 + 2 10, 10 + 10 20, 0 2 3 4 5. So this is 50. Now I want you to use direct formula. A plus summation fi di upon summation fi. सो ये है अज्यूम मीन का फॉर्मूला. ए आपका ऑलरेडी कितना था, 550 माइनस 240 अपॉन 50. अब अगेन
टाइम सेविंग स्टेप, कैलकुलेशंस बढ़ानी नहीं है, उसे कम करना है। तो पहले आप ये कैलकुलेट कर लो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि 550 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5, आप 24 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो हमारा कितना आएगा, 4.8 है, राइट बेटा। 4.8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 550 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 545.2। अगेन यूनिट मैंने आपको क्लियरली बता दिया, एक्सआई का यूनिट जो है वो क्लास इंटरवल होती है, तो क्लास इंटरवल रुपीज में है, तो दिस इज ऑल्सो रुपीज। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, दैट इज दिस इज द एवरेज या मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। ओके, so this is your assume mean method. I hope I am clear why assume mean method in these kind of question where the numbers are big is important. You can directly apply assume mean and save on your time. Now there are other questions also which can come like question number 3. How to find the unknown value? So there is no need to panic on these type of question. Again, the concept is exactly the same. क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल इज 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, and 23 to 25. Class intervals are given, frequencies are given, 7, 6, 9, 13, F, 5, 4. Again, first step remains same, calculate xi, चेक कर लीजिए क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है, हाँ कंटिन्यूस है, गैप इक्वल है, यस इट इज इक्वल, जस्ट चेक। 11 और 12 13 की सेंटर मोस्ट वैल्यू मतलब एक्स आई, this plus this upon 2, average this plus this by 2, right? So upper limit plus lower limit upon 2 will be 12. Similarly the next one will be 14, you can see the gap, it is 2, so 16, 18, 20, 22, and 24. Again, you can see that the numbers are little huge. I don't know whether you want to multiply it directly or you want to do the assume mean method. The choice is yours. Okay, but I would prefer to do a assume mean. So di is xi minus a. अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी सेंटर मोस्ट वैल्यू a ही हो जाएगी, राइट? सो 12 माइनस 18, 8 में से 2 गया 6, राइट? मैंने आपको बोला ये 0 आएगा, इसके ऊपर सारे नेगेटिव, तो 14 माइनस दिस माइनस 4 माइनस 2, 2 4 and 6. So see how I have reduced on the calculations. FIDI. Now I have to multiply very small numbers, right? 6 into 7, right children? So now see how the calculations have reduced. So minus 42, 6 into 4, right? So this is 24, 9 into 2, 18, 0 into 13, 0. This is 2f, right? 2 into f, 5 fours are 20, 6 fours are again 24. Again, I told you in the previous way, add these separately. So 2f तो अलग ही रह जाएगा because 2f will not get added to any. तो इसका क्या आएगा, 444. यहाँ पे ऐड करके देखो क्या आया, 8 plus 2 10, 10 plus 4 14, 4 1 carry over. So 4 plus 1 5, 6 7 8, minus 84. सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, दिस इज माइनस 84, 84 में से 44 गया, क्या आया 40, वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस 40 प्लस 2f इज योर सम, राइट? इसको ऐड करो, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देखो, राइट चिल्ड्रन? अगेन 6 plus 4 10, राइट? 7 plus 3 another 10, 20 हो गया, दिस इज 29 हो गया, 29 plus 4
राइट 34 हो गया. सो 4 प्लस एफ तो अलग से है ही. 3 3 plus 1 4, so 44 plus f is the frequency ka total. Now in this kind of question the mean will already be given to you, that is why it is asked ki f find karo. So mean is equal to a plus summation fi di upon summation fi. So mean is given to us as 18. This we have already taken as 18. This is minus 40 plus 2f divided by 44 plus f. Now again, please don't take LCM. सबसे पहले 18 को उधर ले जाओ. So 18 minus 18 is equal to minus 40 plus 2f upon 44 plus f. 18 and 18 0 हो गया. 0 into 44 plus f is again 0 children. So this is minus 40 plus 2f. So can I say 2f is equal to 40? So f is equal to 20. This is how you will get your frequency. Again, I just because I've used assume mean method, my calculations have reduced. So chance of making a mistake is little less. अगर मैंने इसे डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करी होती तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती. सो इफ़ यू आर रियली गुड एट कैलकुलेशन, आप सिली मिस्टेक नहीं करते हो, आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो इस क्वेश्चन में. लेकिन क्योंकि मेरी भी सिली मिस्टेक्स होती हैं, दैट इज़ वाई आई प्रेफर where the calculations are little less. So that is why I did the third question of missing frequency by assumed mean method. Okay, I did not use the direct method. So the choice is totally yours. So now here, have a look at this question, children. In question number 5, if you see the class interval, they are not continuous, right? So how to make class interval continuous? The logic is very simple. I want you to subtract zero point 0.5 from the lower limit and add zero point 0.5 to the upper limit. Again, next interval, subtract zero point 0.5 from the lower limit. 53 minus 0.5 is 52.5 and add 0.5 to the upper limit. Same way for the next, 0.5 subtraction from the lower limit, 0.5 addition to the upper limit. So this is, and rest remains the same. Okay. Okay. Have a look at question number 7. I was just counting के कितने class intervals है. तो generally सब में class intervals 1, 2, 3, 4, 5 है. Odd है. Check here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. तो क्योंकि question number 7 में class interval 6 हैं, तो जब आप xi find करोगे बेटा, जब आप xi यानी कि इन दोनों का एवरेज वैल्यू, दैट इज ये अगले वाले का 0.06 यानी कि 4 का गैप, 0.10 सॉरी, राइट. सिमिलरली 0.14 एंड सो ऑन. जब आप फाइंड करोगे xi की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, first is 0.02, next is 0.06, next one is 0.10, next is 0.14, right, next is 0.18, next is 0.22. Now if you have to take assume, अब यहाँ पे assume mean लेने का क्या मतलब हुआ, आप इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स अगर छोड़ने की कोशिश करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 3 इधर छोड़ोगे तो कोई भी सेंटर टर्म नहीं है. इसका मतलब ये दोनों सेंटर टर्म में से आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. अज्यूम मीन कैन बी टेकन एज a can be taken as 0.1 also, or assume mean can be taken as 0.14 also. This is how you will work for question number 7. Okay, now
Question number 8 is not in your syllabus, since the gap in the intervals you can see is variant. It is not fixed, right? इसमें 6 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, तो ये क्वेश्चन आपके फिलहाल एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, so there is no need to attempt this. Rest mean is over, so I've already taught you. We will continue in the next video for how to find mode and difference between mode and mean होता क्या है. So thank you all for seeing the video. Thank you. And if you have any doubt, again, please leave in the comments below. Thank you.